Good morning, my dear students. I welcome you all on SPS Academic World online platform. In this Corona period, we have managed online platform, and today I am going to begin with a new topic, and the topic is William Wordsworth. As you know that William Wordsworth is in both the courses of TGT and PGT. In TGT you have four writers: William Wordsworth, Galsworthy, William Shakespeare and John Milton. And William Wordsworth is also in the course of PGT. So without wasting time, I would like to tell you that what you will studying William Wordsworth. As an individual writer, you need to study the biography of a writer, individual works of a writer, and the criticism of that very writer. So we begin right from here. So this is William Wordsworth. William Wordsworth. The very first thing we'll see that what kind of writer or poet William Wordsworth was. William Wordsworth was a renowned personality, and still he is a renowned personality. William Wordsworth was not only a man, but he was just a concept. William Wordsworth is not simply a literary figure, but a literary concept. So first of all, we see William Wordsworth as a poet. Okay, so William Wordsworth as a poet. What a poet is? A poet is one who writes poetry or who composes poetry. Now what poetry is? Poetry is just an art, as Macaulay says that it is an art doing by the means of words what a painter does by the means of colors. But William Wordsworth defines poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings, and powerful feelings do take place in tranquility when the emotions are overcharged. So William Wordsworth as a poet. Topic is Wordsworth as a poet. This is the topic. First, we know well that a man is always a product of his environment and atmosphere. हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति अपने पृष्ठभूमि का एक उत्पाद होता है. हम कैसे समाज में पैदा हुए हैं, हम कैसी पृष्ठभूमि से आए हैं और क्या हमारा बैकग्राउंड रहा है, ये सब कुछ मायने रखता है कि हम क्या करेंगे और हम क्या आने वाले जीवन काल में लिखेंगे. तो हम बता देना चाहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ was a product of romantic era. As we know well that William Wordsworth was born in 1770 and he died in 1850. And in order to understand this period, इस पीरियड को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि ये पीरियड कब से कब तक रहा और जिस समय विलियम वर्ड्सवर्थ एक्टिव थे वो पीरियड नॉर्मली कौन सा पीरियड कहा जाता है. तो वी नो दैट फ्रॉम 1660 to 1798 दिस पीरियड इज नोन एज नियोक्लासिकल पीरियड. कौन सा पीरियड कहा जाता है? नियोक्लासिकल पीरियड. ठीक है. अब यहां से आप देख सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न हियर, और ये पीरियड कहां आता है? ये पीरियड आता है नियोक्लासिकल पीरियड के अंतर्गत. तो ही वाज बोर्न इन नियोक्लासिकल पीरियड. और अगर हम सब कैटेगरी को देखें तो ही वाज बोर्न इन neoclassical period, but next subcategory is transitional period, because
when this is divided, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो 1660 to 1700 this period is known as restoration period. यहां आप ध्यान से देख सकते हैं, और ये रेस्टोरेशन पीरियड रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ इंटररेग्नम. चार्ल्स सेकेंड was brought back to the throne of England. And 1700 to 1745, this period is known as Augustan period. Or this is also known as the period of Alexander Pope. And right from 1745 to 1798, this period is known as transitional period. ट्रांजिशनल पीरियड के साथ साथ इसे पीरियड ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है या एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है. एंड एट द सेम टाइम इट इज नोन एज द पीरियड और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का भी पीरियड इसे हम कहते हैं. तो हम देख सकते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन ट्रांजिशनल पीरियड. विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? ट्रांजिशनल पीरियड में हुआ था. तो ट्रांजिशनल पीरियड में जन्म तो जरूर हुआ था, लेकिन पैदा होते ही तो कोई लिखने नहीं लगता है. लिखने में उसे थोड़ी उम्र लगती है. 17, 18, 19 साल का जब होगा वो, तब वो लिखना शुरू करेगा. एंड यू नो दैट इन 1789 दिस इज द ईयर इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस. और आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन was just a commencement of romantic era. Why? Because French Revolution lasted right from 1789 to 1798 almost, or 1799, and it ended with the coronation of Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte के विजय के साथ या नेपोलियन बोनापार्ट के गद्दी पर बैठने के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंत हो गया, ऐसा आप जानते हैं. तो ये जो पीरियड था 1789, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम आपको याद दिलाएं तो वर्ड्सवर्थ ने एक पोयम लिखी है जो कि वास्तव में एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रिल्यूड है. नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन. उसमें एक लाइन आती है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कि इट वॉज ब्लिस इन डेथ डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज हेवन. It means he appreciates French Revolution because in 1789 when French Revolution took place he was in France. वो फ्रांस में थे, तो उन्होंने इसको अप्रिसिएट भी किया. नाउ वी कम बैक टू द पॉइंट. हम पॉइंट पर वापस आते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए 1770 में, और तब था ट्रांजिशनल पीरियड. और ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है संक्रमण काल. It is the period of change. What kind of change it was? The things were changing from neoclassicism to romanticism. And how will come to know that it is neoclassical or classical and it is romantic? कैसे हम जानेंगे कौन सा न्यूक्लासिकल है या क्लासिकल है और कौन सा रोमांटिक है? बहुत आसान सी बात है. जब कहीं हम बहुत नियम कानूनों में बंध कर काम करते हैं, जब कभी हम मानते हैं कि सिद्धांत ही सब कुछ है, हमें अपने सिद्धांतों से नहीं हटना है, जब छोटी छोटी बातों में भी हम नियम कानून गढ़ने लगते हैं, तो वो क्लासिकल बन जाता है. ठीक है. और जब हम केवल एंजॉयमेंट को केंद्र में रखते हैं, जब हम केवल ये मानते हैं कि सब कुछ जो है वो ब्यूटी है, सुंदरता है, या किसी चीज़ को बिना मेहनत के हम समझ सकते हैं, तो वो रोमांटिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, टॉमस ग्रे का नाम आप सबने सुना ही होगा. ही इज नोन एज द प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म, एज विलियम ब्लेक इज ऑल्सो नोन एज, यू नो. तो उनकी एक पोएम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड. इफ यू गो थ्रू द पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एलिजी. आपको पता होगा कि द theme of this elegy is undeserved obscurity. This is very important to understand. ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है.
deserved obscurity. This is the theme of elegy written in a country churchyard. अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारी थीम्स निकलेंगी, but the central theme is undeserved obscurity. What do you understand by undeserved obscurity? अनचाही गुमनामी, एक ऐसी गुमनामी जिसके हम हकदार नहीं थे, एक ऐसी गुमनामी जिसे हम नहीं चाहते थे कि हमें मिले। होता क्या है, कभी कभी आप देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दें, आप भारत के वासी हैं, यू ऑल आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ के जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। अगर मुकेश अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी के परिवार में पैदा हुआ तो उसने इसके लिए क्या किया है? उसने उसके लिए कुछ किया है? He found each and everything that what a common man tries to get in the whole life. उसे वो सारी चीजें इस जिंदगी में ऐसे मिल गई जैसे कि उसे दान दे दी गई हूं। जो एक सामान्य व्यक्ति पूरे जीवन में पाने के लिए सोचता है वो उसे पैदा होते ही मिल गया। एंड व्हाट इज हिज एफर्ट इन दैट? उसमें उसका क्या प्रयास है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द लक, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फेट। ये केवल उसका भाग्य था कि उस परिवार में पैदा हो गया। इसी तरीके से थॉमस ग्रे ने एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में दिखाने की कोशिश की है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत काबिल हैं, लेकिन they could not find the opportunity, that's why they could not prove themselves, इसलिए वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सके हैं। तो undeserved obscurity simply means एक ऐसी गुमनामी जिसके वो हकदार नहीं थे। इसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि बहुत सारे इस गांव के लोग, जिस गांव की चर्चा वो करते हैं, हम मिल्टन हो सकते थे, बहुत सारे लोग ओलिवर क्रॉमवेल हो सकते थे, बट दे कुड नॉट फाइंड द अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला, इसीलिए उनके साथ ये समस्याएं आती रही हैं। ठीक है, तो अनडिजर्व्ड ऑब्स्क्योरिटी मैंने लिखा क्यों? बिकॉज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग ऑफ क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म। क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का एक खूबसूरत मिश्रण है। हाउ इट इज क्लासिकल? इट इज क्लासिकल ओनली बिकॉज ऑफ इट्स ट्रीटमेंट, बिकॉज ऑफ इट्स स्टाइल, बिकॉज ऑफ इट्स डिक्शन। इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो स्टाइल उन्होंने यूज किया है, जो ट्रीटमेंट है थीम के लिए, वो पूरी तरीके से क्लासिकल है। बिकॉज थॉमस ग्रे वांटेड टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी रूल एंड रेगुलेशन ऑफ लिटरेचर, बट ऑटोमेटिकली इट बिकेम रोमांटिक बिकॉज ऑफ इट्स एफर्टलेसनेस। इन इट्स थीम इट इज रोमांटिक एंड इन इट्स ट्रीटमेंट इट इज क्लासिकल। ये दोनों है। So automatically it became romantic because the poet sympathizes, but it could not be real romantic poet. Why? Only because he sympathized. अगर उसने sympathize की जगह empathize किया होता वर्ड्सवर्थ की जगह, तो क्या हो जाते? वो सचमुच के रोमांटिक हो जाते। ये समझने की बात है। अगर थॉमस ग्रे ने भी छोटे लोगों की बातें की फिर भी वो रोमांटिक नहीं हो सके वर्ड्सवर्थ की तरह, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थॉमस ग्रे ने गरीब लोगों को सिंपैथाइज किया, उनको बेचारा कह के पेश किया, जबकि वर्ड्सवर्थ ने कभी भी छोटे गरीब देहाती लोगों को बेचारा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दे आर द डिवाइन फिगर्स, ये सब डिविनिटी से भरे हुए लोग हैं। उन्होंने उनको क्या कहा? ये लोग खास हैं, और बड़े लोगों को उन्होंने ना खास बताया। तो कुल मिला के इट वॉज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशनल पीरियड था जब विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए। चीजें नियो क्लासिसिज्म से रोमांटिक की तरफ धीरे धीरे जा रही थी। एंड यू नो वेल दैट विद द कमेंसमेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब शुरुआत हुई, कब? इन 1789, तब से लेके इसके अंत तक 1798 तक क्या हुआ? ये दिस पीरियड 9 years, this period is known as the ferment of romanticism. Ferment of romantic age, it would be better to say. Ferment of romantic age, if you are asked that what it is, simply you have to say 1789 to 1798, this particular period is known as the
ferment of romantic age. Is that clear? ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि विलियम वर्ड्सवर्थ का बैकग्राउंड कैसा था, विलियम वर्ड्सवर्थ किस समाज में पैदा हुए। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही बदलते समाज में पैदा हुए, एक संक्रमण काल में पैदा हुए, जब चीज़ें न्यू क्लासिकल से रोमांटिक होने की कोशिश कर रही थी, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। एंड यू नो दैट व्हाट वर द क्लेरियन कॉल्स ऑफ French Revolution? There were the three clarion calls of French Revolution, and these three clarion calls were equality, liberty, and fraternity. इक्वलिटी का अर्थ होता है समानता, लिबर्टी का अर्थ होता है इट इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम, एंड फ्रेटर्निटी इट इज अ काइंड ऑफ ब्रदरहुड, ये एक तरीके का भाईचारा होता है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन मांगे थी किसकी? फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन की तीन मांगे थी, और आपको पता होगा कि यही तीन चीजें मुख्य रूप से आती हैं किसी भी रोमांटिक राइटिंग में, बिकॉज रोमांटिक राइटिंग एक्चुअली हेरोज ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंसेस, हर प्रकार के डिफरेंसेस को वो समान कर देता है। दिस इज व्हाट रोमांटिसिज्म इज। नाउ विल सी that what kind of personality Wordsworth was, what kind of poet Wordsworth was, because we have now discussed the background or the society in which Wordsworth was born. Okay? Now, be very careful. Now, Wordsworth as a poet, again, in detail. The very first thing, what poetry is according to William Wordsworth. William Wordsworth says that poetry is of feelings. Now you have to understand the personality of William Wordsworth as a poet through this definition given by Wordsworth. What he says, that poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. A spontaneous, or sometimes you do not find this particular word, means removal of article, sometimes you find in this definition. Poetry is a spontaneous overflow. What is spontaneous? What is spontaneity? Simply, this is automatic. Spontaneous simply means when you do not effort for that, when you do not labor for that, automatically it comes out. ये अपने आप बाहर आए, उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जब आपके अंदर जो जागृत भावनाएं होती हैं, उद्वेलित भावनाएं जो होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, मतलब जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं आपकी भावनाएं, तो वो अपने आप ओवरफ्लो करने लगती हैं, आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं, वो बाहर निकलती हैं। और जब वही भावनाएं शब्दों में परिवर्तित कर दी जाती हैं, शब्दों में बदल दी जाती हैं, तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार वो कविता बन जाती है, पोएट्री बन जाती है। ठीक है, लेकिन जहां हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, एज ए क्रिटिक अगर हम बात करें, तो इज इट पॉसिबल
क्या आपको लगता है कि ये संभव है? बिकॉज पोइट्री नॉर्मली इज अ हार्ड लेबर्ड एक्सप्रेशन। पोइट्री बड़ी कठिन मेहनत के बाद होती है, क्योंकि जो रियल पोइट्री होती है, कहने का मतलब जिसे हम वर्स कहते हैं, जो वर्स होती है उसमें राइम, रिदम, मीटर, डिक्शन और जितनी भी प्रोसोडी होती हैं सबको हमें मेंटेन करना पड़ता है। सो एज अ थीम, एज एन abstraction, the definition of Wordsworth poetry is excellent, but technically we can find some faults in this definition. अगर हम टेक्निकली बात करें तो इस डेफिनेशन में हम बहुत सारी समस्याएं ढूंढ सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस डेफिनेशन इज स्पॉन्टेनियस। दिस पर्टिकुलर टर्म is the most important term in this definition. Now, powerful feelings. Simply what Wordsworth says or tries to say that poetry is a feeling, not a view. Poetry एक भावना है, विचार नहीं है। ये भावनाओं से जो भी चीजें होके गुजरेंगी और पोइट्री कहलाएंगी। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे चार्ल्स लैम्ब कि जितनी भी एसेज हैं, ऑल द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब आर कॉल्ड लिरिक। उसमें तो कोई भी प्रोसोडी मेंटेन नहीं की गई है, उसमें कोई राइम, रिदम, मीटर, डिक्शन मेंटेन नहीं किया गया है, फिर भी उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लिरिक। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, ओनली बिकॉज ऑफ फीलिंग्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लिरिक। So, one more important thing what you have to keep inside your brains, आपको अपने दिमाग में एक चीज और भी रखनी है। वो क्या रखनी है? कि ये पावरफुल फीलिंग्स होती कब हैं? ये जो होती हैं, it takes its origin ट्रैंक्विलिटी। ये जो है, इसकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो एकाकीपन में होती है। जब बिल्कुल आप अकेले होंगे, लगभग तन्हा होंगे, एक हैप्पी तन्हाई जिसे हैप्पी एलियनेशन कहते हैं, वो होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी भावनाएं बाहर आएंगी, बहुत ज़्यादा चार्ज्ड भावनाएं बाहर आएंगी, और जब आप उन्हीं भावनाओं को शब्दों में पिरोएंगे तो वो पोइट्री बन के आपके सामने आ जाएंगी। So what William Wordsworth actually wants to say here that poetry is a matter of spontaneity of feelings. जो feelings हैं आपकी, वो क्या हैं? वो अगर spontaneity में हैं तो वो क्या बन जाएंगी? वो poetry बन जाएंगी। ठीक है? देखिए, this definition, now a fact you have to cover that this definition William Wordsworth gave in his preface. उन्होंने एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज प्रीफेस। प्रीफेस, व्हेन दिस प्रीफेस केम इन 1800। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉरी, व्हाई दिस इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क? बिकॉज all of his poetic theories, Wordsworth's poetic theory, you can find in this writing. This preface was added to lyrical ballads. Lyrical ballads, you know, as it is well known that lyrical ballads is a joint venture of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. It was a joint venture. For the first time it came, or its first edition came in 1798. As you know well that there were 23 poems in this volume, and 19 poems were given by or composed by William Wordsworth, and 4 poems were composed by Coleridge. These are very important facts to understand. समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं
कि लिरिकल बैलेड्स के साथ कभी कभी हम रोमांटिक एज की शुरुआत मानते हैं, और लिरिकल बैलेड्स के कई एडिशंस आए। जो पहला एडिशन आया वो 1798 में आया, जिसमें कुल 23 कविताएं थी, जिसमें से 19 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और 4 किसने लिखा था? सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने। महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि इस पूरे वॉल्यूम की जो पहली पोयम है उसको एस.टी. कॉलेरिज ने लिखा था, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने लिखा था, और पोयम की टाइटल थी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बहुत ही पॉपुलर पोयम है, और इस वॉल्यूम की अंतिम पोयम जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा थी, एंड इट्स टाइटल वाज टिंटर्न अबे। क्या टाइटल थी इसकी? टिंटर्न अबे। ठीक है, तो जब दूसरा एडिशन आया, लिरिकल बैलेड्स का दूसरा एडिशन आया, ये कब आया? तो ये आया 1800 में, 2 साल बाद। ठीक है, तो जब 2 साल बाद इसका एडिशन आया तो इसी में एक ऐड कर दिया गया था वर्ड्सवर्थ के द्वारा, प्रीफेस। इसीलिए प्रीफेस 1800 कहते हैं इसको, क्योंकि 1800 में आया, दूसरे एडिशन में आए। तो जब 1800 में प्रीफेस आया तो प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने सारी अपनी पोएटिक थियरीज दे रखी थी कि पोएट्री क्या है, पोएट्री कैसे समझी जानी चाहिए, पोएट्री में क्या क्या होना चाहिए, एक पोएट को कैसे लिखना चाहिए, क्या उसे अपने बैकग्राउंड का गुलाम होना चाहिए या उसे नया बैकग्राउंड बनाना चाहिए, कैसे अर्बन पोएट्री और रूरल पोएट्री में डिफरेंसेस क्रिएट करके रूरल पोएट्री को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, कैसे रियल लव, रियल सिंपैथी और एम्पैथी रूरल यानी कि रस्टिक एरियाज यानी कि देहात में पाया जाता है। वर्ड्सवर्थ बहुत बड़े आदमी थे, फिर भी उन्होंने देहाती लोगों को ही क्यों उन्होंने खास बनाया, बच्चों के बारे में ज़्यादा क्यों लिखा, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते थे, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते थे जो कि कॉमन लोगों की हो और कॉमन लोग उसे सुनते हों, बोलते हों, समझते हों, कॉमन लोगों के बीच में ही ऐसा उन्होंने क्यों किया। ठीक है, तो इस प्रीफेस में वो सारी बातें मिल जाएंगी। बेटर टू से, ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं कह दूं कि वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट में जितनी भी बातें करूंगा वो नॉर्मली आपको प्रीफेस में मिल जाएंगी। अगर आप प्रीफेस जाके विलियम वर्ड्सवर्थ का पढ़ते हैं तो वर्ड्सवर्थ से संबंधित बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। सो आई सजेस्ट यू टू रीड प्रीफेस of William Wordsworth that he added to Lyrical Ballads second edition in 1800। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष तौर पे ख्याल रखेंगे, ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई उनकी डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पावरफुल फीलिंग्स की स्पॉन्टेनिटी को उन्होंने क्या कह दिया? पोएट्री कह दिया। नाउ वन मोर थिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ यूज्ड टू से, विलियम वर्ड्सवर्थ कहा करते थे दैट पोएट्री मस्ट बी कंपोज्ड इन कॉमन लैंग्वेज एंड इट मस्ट बी कंपोज्ड फॉर कॉमन पीपल। डू यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग? उन्होंने कहा, जैसे आप लोग बिहारी की कविताएं पढ़ते होंगे तो बिहारी के बारे में कहा जाता है, बिहारी मतलब जो हिंदी कवि हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गागर में सागर भर दिया? मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत थोड़े में कह दी, क्योंकि उनकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट है। जैसे एक बिहारी की छोटी सी लाइन हम आपके सामने रखें, जैसे भाषा की बात की जाए कि क्या भाषा के लिए बोलना जरूरी होता है? क्या अगर दो लोग बातें करना चाहते हैं तो शब्दों का प्रयोग जरूरी है? क्या ये जरूरी है? तो बिहारी ने कभी कभी इस बात को साबित किया है कि कभी कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। जैसे उन्होंने एक जगह लिखा है, आपको कल्पना करना है कि कोई पार्टी चल रही है या कोई पूजा पाठ हो रहा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो जो उसमें नायक है, मतलब जो हीरो है उस राइटिंग का, वो हीरोइन को देखता है पहली बार शायद,
और देखकर चूंकि उसके साथ वो कुछ वार्तालाप करना चाहता है या उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन अब उस पार्टी में उसको डायरेक्टली तो कह नहीं सकता कि आइए बाहर चलते हैं, इसलिए वो अपने नैनों से कुछ कहता है, इशारा करता है, आंखों से बातचीत होगी, शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कविता है कहत नटत खीझत, उल्टा है, कहत नटत रीझत खीझत हिलत मिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये इंग्लिश की कविता नहीं है, हिंदी की है। क्योंकि मैं हिंदी टीचर हूं नहीं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के लिए कभी कभी लाना पड़ता है। तो सबसे पहले इशारे से नायक ने कुछ कहा, किससे? नायिका से। नायिका ने इशारे से नकार दिया होगा, ऐसे ऐसे मुंडी कर दी होगी, नकार दिया, नहीं हटो, इतनी भीड़ में तुम बुला रहे हो। और जब उसने नकारा इशारे से, तो उस नकारने की स्टाइल में इतना दम था कि हीरो जो है, नायक जो है, उसी नकारने की अदा पर ही रीझ गया। वाह क्या गजब नकारा है। तो कहत, पहले उसने इशारे से कहा, फिर नायिका ने इशारे से नकारा, नकारने की अदा पर रीझ गया नायक, और जब वो रीझ गया, खुश हो गया कि क्या गजब नकारा है, तो नायिका को बड़ा गुस्सा है, वो खींच गई कि नकारने के बाद भी कितना दुष्ट किस्म का इंसान है, अभी भी रीझ रहा है। तो बातें होने लगी अपने तरीके से, लज्जा से, शर्म से, लेकिन बातें इशारों से हो रही हैं। तो बहुत छोटे में ही पूरा बातचीत का ब्यौरा बिहारी ने पेश कर दिया। कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया, जैसे नटत। नटत का मतलब आमतौर पे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो कठिन शब्द है ये। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कहा कि नहीं, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कविता में, क्योंकि गांव के देहाती लोग, सामान्य लोग, कॉमन लोग बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और वर्ड्सवर्थ का मानना था कि हम जो लिख रहे हैं वो सामान्य लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो भाषा भी सामान्य होनी चाहिए। सामान्य लैंग्वेज की बात विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं, ये ध्यान रहे आपको। तो पोएट्री मस्ट बी कंपोज्ड इन कॉमन लैंग्वेज। पोएट्री किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए। वाई? बिकॉज इट मस्ट बी कंपोज्ड फॉर कॉमन पीपल। क्योंकि ये किसके लिए होनी चाहिए? कॉमन पीपल के लिए होनी चाहिए, तो कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए। बट वन कंडीशन इज देयर, वहां एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है? दैट द लैंग्वेज मस्ट बी फुल ऑफ इमोशंस। उसमें भावना दिखनी चाहिए। बिना भावनाओं के कोई भी बोली गई भाषा बेकार होती है, उसमें भावनाएं दिखनी चाहिए। एंड दीज इमोशंस मस्ट बी कलर्ड विद इमेजिनेशन। ठीक है, ये कलर्ड विद इमेजिनेशन होनी चाहिए, इसमें कल्पना के रंग भरे हुए होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कल्पना के पूरे रंग इसमें भरे हुए होने चाहिए। क्लियर है? मतलब सामान्य भाषा, सामान्य लोगों के लिए, सामान्य दुनिया से ली गई भाषा, भावनाओं से ओतप्रोत भाषा, कल्पना के रंग इस पर चढ़े हुए होने चाहिए, तभी ये खास करके पोएट्री बनेगी, नहीं तो ये पोएट्री बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, you know and you must know, was a poet of romantic age, hence romantic poet he was. Now, to understand William Wordsworth as a poet, you must understand romanticism, because William Wordsworth was a romantic poet. Romantic poet. Now the question rises that what is romanticism and who can be called romantic poet? तो रोमांटिक पोएट कौन होता है? रोमांटिसिज्म क्या है? जिसे हम लोग कहते हैं बड़ा रोमांटिक आदमी है,
तो क्या देखते हैं उस व्यक्ति के अंदर जब हम कहते हैं कि बड़ा रोमांटिक आदमी है? सबसे पहले तो आप रोमांटिक का मतलब समझ लीजिए। रोमांटिक सिंपली मीन्स दैट इज नॉट रियल। रोमांटिक वो होता है जो रियल नहीं होता है, जो वास्तविक नहीं होता है, वो रोमांटिक हो जाता है। इसका कतई मतलब नहीं कि वो झूठा होगा, उसका सच कुछ अजीब किस्म का होता है जो सबके समझ में नहीं आएगा, उसी के समझ में आएगा जो रोमांटिक होगा। जैसे एक प्रेमी है, कभी कभी आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति की याद में फला लड़के ने फांसी लगा ली। तो कुछ लोग इसको समझ भी नहीं पाते हैं कि यार इतनी भी याद किसी की आ सकती है कि फांसी लगा ले कोई, अपने जीवन से मुंह मोड़ ले। अब कुछ लोग कहेंगे बेवकूफ था, लेकिन उसकी यथास्थिति को वही समझ सकता है जो उस स्थिति में हो। एज AC Bradley in Shakespearean tragedy says, the world can only be felt subjectively. दुनिया को आप अपने हिसाब से ही समझ सकते हैं। किसी का गम समझने के लिए उतना ही गम आपको महसूस करना होगा जितना गम उसके पास है। किसी की माँ की डेथ हो गई है और आप जाकर कहते हैं कि मुझे भी उतना दुख है, तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जिसके माँ की डेथ हुई है उसके गम के बराबर आप गम को फील नहीं कर सकते हैं। उतना गम आप तभी फील करेंगे जब वो घटना आपके साथ घटेगी। जिस स्थिति में जो होता है उसकी अवस्था वही जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, तो रोमांटिक का मतलब होता है सिंपली रियलिटी से थोड़ा सा दूर। It is a kind of escapism. What do you understand by escapism? When we do not find ourselves satisfied with the present or with the present situation, we try to create an atmosphere according to our need. हम अपनी जरूरत के अनुसार एक वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं और उस दुनिया में हम अपने आप को ले जाते हैं। Just we try to transport ourselves into that world to get satisfied, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं। मतलब समझे? मतलब ये कि हम, जैसे एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे 12 बजे रात या 1 बजे रात सोने का समय नॉर्मली होता है और उसी समय कोई बहुत अच्छे मूड में है और कहता है चलो यार थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं, गलियों में घूम आते हैं, मजा आ जाएगा। अब जिसको नींद आ रही है वो समझ भी नहीं पाएगा कि इतनी रात को इसको घूमने का मन क्यों हो गया है, बिकॉज ही इज रोमांटिक। वो नियम कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। उसका जब मन करेगा सोएगा, जब मन करेगा वो जागेगा, जब मन करेगा वो गलियों में घूमेगा, जब जहां मन करेगा वो करेगा, बिकॉज ही इज रोमांटिक। हो सकता है कि एक फूल को लेकर वो घंटों बैठा रहे और उसकी खूबसूरती को निहारता रहे। कोई क्लासिकल व्यक्ति होगा तो कहेगा क्या नाटक कर रहा है यार 1 घंटे से, लेकिन उस फूल की खूबसूरती को 1 घंटे तक निहारने की क्षमता केवल उस व्यक्ति में है जो कि रोमांटिक है। रोमांटिक व्यक्ति वो सब कुछ कर सकता है जो एक क्लासिकल व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो कल्पनाओं में सब कुछ कर लेगा। जैसे कि आपने एक गाना सुना होगा, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। अब खुशबू को केवल एक रोमांटिक व्यक्ति ही देख सकता है, बाकी लोग उसे सूंघेंगे। वो नाक की चीज है, लेकिन रोमांटिक व्यक्ति उसे देख सकता है। तो एक जो बहुत ही टेक्निकल व्यक्ति होगा वो तुरंत कहेगा कि ये बेवकूफ़ी भरा गाना है, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ शायद देख लेते, विलियम वर्ड्सवर्थ पक्का देख लेते, क्योंकि ही वॉज रोमांटिक। He could see the things that a normal man cannot. सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है, लेकिन वो देख सकते थे। क्यों? क्योंकि वो रोमांटिक पोएट थे। उनके अंदर वो क्षमताएं थी जो सबके अंदर नहीं हो सकती। तो रोमांटिक सिंपली मीन्स ऑलमोस्ट अनरियल, बट रोमांटिक इज वेरी नियर टू एब्सोल्यूट रियलिटी। बड़ी सच्चाई के पीछे भागना। एज बर्ट्रैंड रसेल in his unpopular essays says, happiness lies not in the principles of life but in the general activities of life. वो कहते हैं कि जो खुशियां हैं
वो जीवन के सिद्धांतों में निहित नहीं है, बल्कि छोटी छोटी गतिविधियों में निहित है। यहां एक रेफरेंस देना चाहूंगा। जे.आर.डी. टाटा ने लिखा है कि हर व्यक्ति ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है। बहुत अच्छा लेख है उनका, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हर व्यक्ति जीवन में अपने ब्रांडेड कपड़ा पहनना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीन्स पे कैल्विन क्लेन लिखा रहे, पेपे लिखा रहे। हर व्यक्ति की इच्छा है कि ब्रांडेड कपड़े वो पहने, जबकि हर कोई जानता है कि जितना आराम पैजामे कुर्ते में आता है उतना आराम दुनिया के किसी कपड़े में नहीं आता है, जबकि उसका कोई नॉर्मली ब्रांड नहीं होता है। तो जो हम करते हैं वो दुनिया के लिए करते हैं। आप जो जीन्स पहनते हैं, जो 10,000 वाले शर्ट पहनते हैं, वो दुनिया के लिए पहनते हैं, अपने लिए नहीं पहनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हर व्यक्ति 5 स्टार होटल में भोजन करना चाहता है, लेकिन जितना मजा अपने मित्रों के साथ सड़क के किनारे किसी स्टॉल पर चाट खाने में आता है, उतना मजा दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि मेरे आईपॉड में 66,000 गाने हैं, लेकिन जितना मजा किसी चाय के स्टॉल पर बजते हुए रेडियो का गाना दे जाता है, उतना मजा किसी 66,000 गाने में नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। यही रोमांटिसिज्म है। तो वर्ड्सवर्थ देहात की गलियों में, खेतों में, फार्म्स में, हरियाली में खुशियां ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, जो कि शहरों में नहीं मिल सकता था। एंड दैट इज वाई विलियम वर्ड्सवर्थ इज नॉट कॉल्ड अर्बन पोएट, ही इज कॉल्ड द पोएट ऑफ रूरल एरिया। वो रूरल एरिया के पोएट कहे जाते हैं। ही बिलोंग्स टू रस्टिक थीम्स, वो रस्टिक थीम्स से बिलोंग करते हैं। And hence he said that poetry must be composed in common language for common people. It must be full of emotions and colored with imagination. भावनाओं से ओतप्रोत भाषा होनी चाहिए और इसमें कल्पना के रंग भरे हुए होने चाहिए। Now we see the watchwords of William Wordsworth's poetry. Watchwords. Watchwords. What do you understand by watchwords? How very easily you will come to recognize that this is the poem or the poetry of William Wordsworth. A few things you have to keep inside your brains. The very first thing is mysticism. What do you understand by mysticism? रहस्यवाद। जैसे आप हिंदी में देखते हैं छायावादी कविताएं होती हैं, वो रहस्य से पूरी तरीके से भरी हुई होती हैं, वैसे वर्ड्सवर्थ अपने मिस्टिसिज्म के थ्रू प्रूव करते हैं कि प्रकृति हमेशा हमारे साथ है। कभी कभी आप चलते होंगे, जंगल से होके या वन से होके या बगीचे से होके गुजरते होंगे, अकेले होते होंगे, फिर भी आपको लगता होगा कि आपके साथ कोई कोई है। जहां कोई नहीं होता वहां भी कोई कोई आपके साथ होता है। आपको फील होता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। वो नेचर है। नेचर इज ऑलवेज रेडी टू असिस्ट यू। नेचर हमेशा आपको असिस्ट करता है। नेचर हमेशा आपके सहयोग में आपके साथ होता है। नेचर का मतलब पेड़ पौधे ये नहीं होते हैं, नदियां झरने पहाड़, ये नेचर नहीं है। दिस इज द फिजिकल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ नेचर। नेचर इज एक्चुअली फाउंड इन योर अनकॉन्शियस माइंड। जो कुछ भी आपके अनकॉन्शियस अचेतन की अवस्था में होता है वो सब कुछ क्या है? नेचर है। तो मिस्टिसिज्म यही कहता है, जैसे वर्ड्सवर्थ होते, अगर इस बोर्ड को वो देखते तो क्या कहते? हो सकता है लिपट के रोने लगते कि आप कभी कितने सुंदर थे, कभी आप एक पेड़ थे, आप में हरियाली थी, लेकिन इंसान की भूख ने अपनी जरूरतों के अनुसार आपको क्या बना दिया? अपने यूज का सामान बना दिया। वर्ड्सवर्थ को दुख होता है ये देख के। यही जो इसमें लकड़ी लगी है बोर्ड में, ये कभी हरा भरा रहा होगा, छाया देता रहा होगा, ऑक्सीजन देता रहा होगा, लेकिन इंसान की भूख ने उसे कहां पहुंचा दिया। तो दिस कॉन्सेप्ट इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड मिस्टिसिज्म ऑफ Wordsworth. Now, next concept is
Pantheism. Pantheism, what do you understand by pantheism? Pantheism simply means Sarveshwarvad. Now you have to understand two things to differentiate pantheism. Pantheism को समझने के लिए दो चीजें आपको समझना है. एक होता है सर्वेश्वरवाद, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, प्रकृति के हर हिस्से में ईश्वर है. और एक होता है जिसे हम कहते हैं एनिमिज्म. एनिमिज्म इज काइंड ऑफ डिजीज. डोंट ट्राई टू मैच पैंथिज्म विद एनिमिज्म. वाई? एनिमिज्म का अर्थ होता है कि दुनिया की हर चीज ईश्वर है. दुनिया की हर चीज ईश्वर है और दुनिया की हर चीज में ईश्वर है. ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. दुनिया की हर चीज में ईश्वर है, ये है पैंथिज्म, प्रकृतिवाद. इसे कहते हैं प्रकृतिवाद. और एनिमिज्म एक बीमारी है कि आप हर चीज को ईश्वर मान लें. जैसे आप चावल खा रहे हैं, आप खाएं ही न कहें तो ईश्वर है, ईश्वर को खा जाऊं. रोटी खा रहे हैं, खाएं ही नहीं तो ईश्वर है, क्या ईश्वर को खा जाऊं? नहीं. आप ये कहिए कि इसमें ईश्वर है, लेकिन खाते समय उससे निकल जाएगा वो. हर चीज में ईश्वर है, हर चीज ईश्वर है, दोनों में अंतर है. तो वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू दिस कॉन्सेप्ट. वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू दिस कॉन्सेप्ट. दिस इज नॉट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. थर्ड, prenatal and post-death theory. This belongs to William Wordsworth. What do you understand by prenatal and post-death theory? William Wordsworth is sometimes blamed to be a philosopher more than a poet. विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर कभी कभी ब्लेम किया जाता है कि वो पोएट से ज़्यादा एक दार्शनिक नज़र आते हैं, और एक पोएट को कभी भी दार्शनिक नहीं होना चाहिए. ये उसकी कमियां हैं अगर पोएट दार्शनिक हो जाता है तो. बिकॉज दर्शन देना फिलोसफर्स का काम है, कवियों का नहीं. लेकिन ये कभी कभी दर्शन दे देते हैं. जैसे प्रीनेटल एंड पोस्ट डेथ, उनकी एक पोएम है इमॉर्टैलिटी ओड. अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको तो आप इस उनकी कविता को पढ़िए, इमॉर्टैलिटी ओड. जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से पूर्व, और पोस्ट डेथ का अर्थ होता है मृत्यु के बाद. यहां इन्होंने बताया है कि जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है. आत्मा जन्म से पूर्व की होती है और मौत के बाद भी वो चलती रहती है. इन्होंने लॉजिक जो अपना दिया है, लॉजिक में इन्होंने कहा है कि कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही समटाइम्स एन इन्फेंट स्माइल्स इन हिज इन्फेंसी. एक जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, वो अपने शैशवावस्था में ही जब वो बिल्कुल छोटा होता है, जब उसे सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, तब भी वो मुस्कुराता है. अब सोचने की बात यह है कि उसे कौन सा जोक समझ में आया है कि वो मुस्कुरा रहा है, उसको किसने कौन सा चुटकुला सुना दिया है कि वो मुस्कुरा रहा है. वो मुस्कुरा ही क्यों रहा है? वो मुस्कुरा इसलिए रहा है क्योंकि वर्ड्सवर्थ के अनुसार व्हेन अ चाइल्ड टेक्स बर्थ, जब एक बच्चा जन्म लेता है, सम ट्रेलिंग क्लाउड्स कम विद हिम फ्रॉम द प्रीवियस वर्ल्ड. पिछली दुनिया से कुछ पीछा करते हुए बादल उसके साथ आते हैं और पिछली कुछ यादें उसके मस्तिष्क में बची हुई हैं, जिसे याद करके वो मुस्कुरा रहा है. लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, वैसे वैसे उसके मस्तिष्क से वो यादें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और इस दुनिया की यादें उसके ऊपर भारी पड़ने लगती हैं. फिर धीरे 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 वो इस दुनिया का व्यक्ति बन जाता है और पीछे की सारी बातें उसके जीवन काल से बाहर हो जाती हैं. बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये प्रीनेटल का कॉन्सेप्ट है कि आत्मा जो है वो जन्म से पूर्व भी होती है. और पोस्ट डेथ थियरी क्या है? मौत के बाद की थियरी. उनका मतलब है कि केवल शरीर मरता है, कभी भी आत्मा नहीं मरती है. आत्मा केवल ट्रेवल करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर वन. एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जिस अवस्था में हम इस वक्त हैं
जिसे हम जीवित अवस्था कहते हैं, वास्तव में ये हमारी मृत अवस्था है। एंड वी आर स्लीपिंग इन आवर बॉडी। बात समझ रहे कि नहीं? मतलब कि हम मरे हुए हैं, हमारा शरीर केवल जीवित है, आत्मा हमारी मरी हुई है। एंड द डे वी डाई, और दिन जिस दिन हम मरते हैं, दैट इज द डे वी एक्चुअली टेक बर्थ। हम वास्तव में उसी दिन जन्म लेते हैं, क्योंकि आवर सोल इज लिबरेटेड। हमारी आत्मा उस दिन स्वतंत्र हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रीनेटल एंड पोस्ट डेथ थियरी जो है ये ऐसे चलती है। एक कॉन्सेप्ट इनका है स्पॉट ऑफ टाइम। What do you understand by spot of time? There is an extract of William Wordsworth, and the title of that extract is Imagination. विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि स्पॉट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जब आप कल्पना के प्रभाव में इतनी बुरी तरीके से आ जाएं कि आपका कंट्रोल आपके फिजिकल बॉडी, फिजिकल वर्ल्ड पर से समाप्त हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं? उसे स्पॉट ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी दुकान पर मान लीजिए जा रहे हो और रोड पर गुजर रहे हो, जब आपको याद आए कि आप किस दुकान पर जा रहे थे, पता चला कि आप 4 दुकान आगे खड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप उस समय स्पॉट ऑफ टाइम के प्रभाव में थे और आप उस स्पॉट ऑफ टाइम के प्रभाव में उस दुकान के आगे बढ़ गए और आपको याद भी नहीं आया। बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पॉट ऑफ टाइम एंड यू फॉरगेट योर फिजिकल वर्ल्ड। आप अपने शारीरिक दुनिया को भूल जाते हैं, और ये आम तौर पे तब होता है जब आप बहुत ज्यादा खुश हों अथवा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हों या परेशान हों। एक्सट्रीम सिचुएशन ये होती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने हैप्पीनेस से इसे जोड़ के देखा। देखिए, इनकी जो अगली चीज है वो है नेचर। व्हाट इज नेचर? नेचर क्या है? मैंने अभी अभी बताया कि नेचर क्या है। नेचर इज एवरीथिंग दैट लाइज इन आवर अनकॉन्शियस माइंड। नेचर क्या है? नेचर वो हर चीज है जो हमारे अचेतन अवस्था में होती है। अचेतन अवस्था में होने का तात्पर्य है कुछ ऐसी चीजें जो हमारे स्वप्न से भी परे हैं। स्वप्न सबकॉन्शियस का मामला है और अचेतन स्वप्न की अवस्था से भी नीचे की अवस्था है। जैसे द नेम ऑफ योर पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा का नाम आपके अचेतन अवस्था का मामला है। सपने में भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपके मम्मी पापा का नाम बदल गया हो, कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो अचेतन में पहुंच चुके हैं। सपने में भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपके भाई बहन बदल जाएं। अचेतन की अवस्था है वो, अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुके हैं वो। जैसे कभी कभी इफ यू गो टू विजिट हिली एरिया, पर्वतीय क्षेत्र में मान लीजिए आप घूमने जाते हैं, ऑल ऑफ सडन यू स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड। आपको अचानक लगता है कि आपके जीवन काल में बहुत अच्छा होने लगा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज जो आपके अचेतन अवस्था में सोती हुई चीजें थी वो जाग गई हैं। ऐसी कल्पनाएं आपके अचेतन अवस्था में पहले से थी, लेकिन जैसे ही आपने इन चीजों को फिजिकली देखा, अचेतन अवस्थाएं जग गई आपकी। दिस इज व्हाट, दिस इज नेचर। और जो आप ये झरने, फूल, पेड़, पौधे, नदियां, पृथ्वी,
जिसे आप नेचर कहते हैं, ये दीज आर एक्चुअली द फिजिकल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ योर सब्जेक्टिव स्टेट्स ऑफ माइंड। आपके मानसिक अंतर्दशा का फिजिकल, शारीरिक ऑब्जेक्टिफिकेशन है, बाहर दिखाई देने लगता है, प्रोजेक्शन है। नेचर इज कॉल्ड द फेयरेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। ईश्वर की जो सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी है वो क्या है? नेचर है। यही आपको समझना है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेसेस नेचर इन इट्स फेयरेस्ट वे। बहुत खूबसूरत अंदाज में नेचर को वो पेश करते हैं। नेचर फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ इज नॉट जस्ट नेचर, इट इज गाइड, गार्जियन, teacher, foster mother, it is everything। कहने का तात्पर्य है कि जो नेचर है वो हर तरीके से हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी सुरक्षा करता है, सब कुछ करता है। नेक्स्ट, इट इज सॉलिट्यूड। Wordsworth is known as the poet of solitude. What is solitude? एकाकी होने के 3 कॉन्सेप्ट हैं और तीनों कॉन्सेप्ट जब हम समझ लेंगे तो सॉलिट्यूड हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट क्या हैं? एक होता है अलोन। कभी कभी आप लोगों को कहते सुनते होंगे, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो उस अलोन का मतलब है, इफ समबडी सेज, अगर कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं परेशान है। वो कुछ समय अपनी परेशानी अकेले झेलना चाहता है, अकेले रह के कुछ सोचना चाहता है, वो परेशान है कुल मिला के। तो दिस इज नॉट अ हैप्पी स्टेट। ये खुशनुमा अवस्था नहीं है, कतई नहीं है। ठीक है, तो ये हैप्पी स्टेट नहीं है। मतलब दिस अलोन इज नेगेटिव। ये अकेला होना एक तरीके से नकारात्मकता दिखाता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं लोनली। क्या कहते हैं? लोनली। अलोन का जहां अर्थ होता है कि यू हैव लेफ्ट द वर्ल्ड बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि आप हैप्पी नहीं हैं। या ऐसी भी स्थिति बनती है कि यू आर नॉट एबल टू अकोमोडाइज विद द सोसाइटी। सोसाइटी से आप अकोमोडाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो द सोसाइटी हैज लेफ्ट यू। समाज ने आपको छोड़ दिया है। द सोसाइटी हैज डिस्कार्डेड यू। सोसाइटी ने आपको त्याग दिया है। आप अकेले हैं, परेशान हैं। लोनली का मतलब होता है कि आप बहुतों की भीड़ में हैं, बहुत लोग आपके अगल बगल खड़े हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, बट नोबडी इज विद यू। लेकिन कोई आपके साथ नहीं है। जैसे कभी कभी आप जाम में फंस जाते हैं, अगल बगल हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, बट नोबडी इज गोइंग टू असिस्ट यू, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, असिस्ट नहीं कर रहा है। आपके नाती हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू। कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा है। यू आर ऑलमोस्ट हेल्पलेस, पूरी तरीके से असहाय हो गए हैं। while you have a lot of people surrounding you, आपके अगल बगल बहुत सारे लोग हैं, but nobody helps you. This is the worst condition, this is the worst state. ये सबसे बुरी अवस्था होती है, हद से ज्यादा बुरी अवस्था होती है कि हजारों लाखों लोग आपके करीब करीब में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। सबसे बुरी अवस्था। So this is lonely, and solitude is the state of bliss. ये वरदान की अवस्था होती है। When you are extremely happy, जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं,
and you don't want to share your happiness, आप अपने खुशियों को लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, आपको लगता है मेरी खुशियां कम हो जाएंगी, इसलिए अकेले मैं पूरी खुशियों को एंजॉय करूंगा। तो इन दैट कंडीशन यू लीव द वर्ल्ड फॉर टाइम बीइंग, समय मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए आप दुनिया को त्याग देते हैं कि मेरी जितनी खुशियां हैं मैं अकेले उसको एंजॉय करूंगा। एंड दैट इज द स्टेट ऑफ ब्लिस। देयर इज एन एक्सट्रैक्ट विद द टाइटल डैफोडिल्स। एक अवतरण है, याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, जिसको एक टाइटल दिया है वर्ड्सवर्थ ने, डैफोडिल्स। उसमें बहुत खूबसूरत लाइन उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है ये देखिए। वर्ड्सवर्थ वॉज ऑन अ टूर वंस। वर्ड्सवर्थ एक टूर पे जा रहे थे, पर्यटन पर जा रहे थे। अचानक उन्होंने डैफोडिल्स के बहुत सारे फूलों को देखा। ऑल ऑफ सडन he saw a lot of flowers, daffodils. अब उसमें वो सोचने लगे कि इन फूलों को अगर आज मैं दिल में बसा लेता हूं, इनको अचेतन की अवस्था तक किसी तरीके से भी पहुंचा देता हूं, तो जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो किस तरीके से ये मेरी मदद करेंगे। वो क्या कहता है, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। जब मैं कभी बूढ़ा हो जाऊंगा, दिस इज इन हिज इमेजिनेशन, उसकी कल्पना में है ये कि बूढ़ा होके जब मैं कभी अकेला होऊंगा, बहुधा मैं अपने एक खाट पर बैठा होऊंगा अकेले, एकाकी में, दिस द स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। जब दिमाग बिल्कुल शांत होगा या खाली होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जवानी के समय में दिमाग में दुनिया भर के फितूर, दुनिया भर की बातें, दुनिया भर का बोझ भरा हुआ है। जब इन द स्टेट ऑफ रिटायरमेंट, जब बूढ़ा हो जाएगा, वो अकेला कभी होगा, दिमाग खाली होगा, शांत होगा, कुछ लाइंस को छोड़ के फाइनली वो अपना असेसमेंट देता है, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, दे विल फ्लैश अपॉन इन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये जो फूल हैं, ये जो डैफोडिल्स हैं, जो आज मेरा वर्तमान है, जिन्हें मैं अंदर फीड कर ले रहा हूं चेतन की अवस्था में, ये मुझे याद आएंगे, फ्लैश करेंगे, चमक जाया करेंगे आंखों के सामने कि कभी हमने ऐसा जीवन भी जिया था, और वही अकेलेपन का वरदान होगा। तो जरूरी है कि अगर आपको अपना बुढ़ापा अच्छा बिताना है तो आपके जवानी और बचपन के पल अच्छे गुजरे हों, कुछ यादें आपके पास होनी चाहिए। अगर वो यादें नहीं होंगी तो आपका जो बुढ़ापे का एकाकीपन होगा वो भी आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। तो दिस विलियम वर्ड्सवर्थ वांट्स टू से, यही विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं। तो सॉलिट्यूड इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ ब्लिस। वो एक तरीके का वरदान का समय होता है, बहुत खास समय होता है, बिल्कुल ताकतवर समय होता है आपके लिए, ये आपको ध्यान रहे। देखिए, तो ही वॉज द पोएट ऑफ सॉलिट्यूड, वो सॉलिट्यूड को पोएट थे। मतलब ही नेवर वॉज डिनाइड बाई द सोसाइटी, बट समटाइम्स ही हिमसेल्फ डिनाइड द सोसाइटी फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, फॉर द सेक ऑफ सॉलिट्यूड। वो सॉलिट्यूड चाहते थे, एकाकीपन चाहते थे। और जीवन की जो फिलॉसफी है, जीवन के जो सिद्धांत हैं, वो जब आप अकेले होते हैं तभी आते हैं। जैसा कि अरस्तु ने कभी कहा था कि जो एक अकेला व्यक्ति होता है, साथ ही साथ अरस्तु के साथ जीन जैक्स रूसो ने भी इसे कहा, सोक्रेटिस भी इसके फॉलोअर थे, बहुत सारे लोग इसके फॉलोअर्स थे जिन्होंने ये कहा कि अकेला व्यक्ति या तो देवता होता है या तो दानव। सबसे बुरे ख्याल आपके मन में तभी आएंगे जब आप अकेले होंगे, या सबसे अच्छे ख्याल आपके मस्तिष्क में तभी आएंगे जब आप अकेले होंगे। जब आप भीड़ में होते हैं तब आपकी असली पर्सनैलिटी, तब आपका असली व्यक्तित्व आपके सामने नहीं आता है, क्योंकि वी आर जस्ट इन्वॉल्व्ड इन द आर्टिफिशियलिटी। हम केवल बनावटी जीवन में अपने आप को रखने में जीवन बिता देते हैं,
और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन की सबसे बड़ी असफलता होती है। ठीक है, तो ये सॉलिट्यूड है। एक इनका वॉच वर्ड है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, what do you understand by exploration? Exploration is a kind of curiosity. Exploration एक प्रकार की जिज्ञासा होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो सड़क पर चलते हैं तो अपनी आंख कान खुला रखते हैं, उन्हें ईच एंड एवरीथिंग से तकल्लुफ रखना है। कैसे रखना है? अगर दुकान पे भी कुछ लिखा है तो उसको पढ़ते जाते हैं। ये कुकर की दुकान है, ये कपड़े की दुकान है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट दे आर द मेन फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। वे ऐसे लोग हैं जो जिज्ञासा से भरे हुए हैं, उन्हें हर चीज जाननी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं आंख कान बिल्कुल बंद करके चलते हैं कि भैया हमें जहां जाना है हमें उसी से मतलब है, हमें दुनिया से मतलब नहीं है। तो दे आर नॉट द मैन ऑफ एक्सप्लोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक सामान्य सा एग्जाम्पल देता हूं। This is the season of summer, you know, this is summer season. गर्मी का समय है ये। Suppose you are going to buy a picture. आप एक घड़ा खरीदने जाते हैं। What would be your process? आपकी प्रोसेस क्या होगी? क्या होगी आपकी प्रोसेस? पहले आप जाएंगे, जो बहुत सारे घड़े पड़े होंगे उसमें से देखेंगे कौन सुंदर दिख रहा है। You'll choose one of a lot of pictures. You'll lift it, उसे आप उठाएंगे, you'll push it, you'll explore each and everything of that picture. उस पिक्चर के बारे में सब कुछ देखेंगे कि मजबूत है कि नहीं, बज रहा है कि नहीं, पका है ठीक से कि नहीं पका है, बड़ा है कि नहीं, हमारे काम का है कि नहीं है। उसके बाद उसमें पानी डाल के देखेंगे कि कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है। And when you are 100% satisfied, then you ask for price. तब आप पूछते हैं कितने का है। क्यों भाई? जाते क्यों नहीं पूछ लिया? इसलिए क्योंकि फर्स्ट यू एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। द सेम थिंग विलियम वर्ड्सवर्थ डज। यही विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं इन हिज राइटिंग्स, स्पेशली इन हिज पोएट्री। यही काम वो करते हैं। व्हाट ही डज, क्या करते हैं? इफ यू गो थ्रू हिज पोएम्स एसोसिएटेड विद लूसी, लूसी ग्रे पढ़ाई हो, एजुकेशन ऑफ नेचर, इफ यू गो थ्रू what William Wordsworth says in the commencement to that poem. 3 years you grew in sun and shower, then is hidden, but I'll recite them. Then nature said, a lovelier flower. 3 साल वो यानी कि लूसी तपती धूप में, बरसात की तेज बौछारों में पली बढ़ी, तब जाके विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसे क्या कहा? अ लवलियर फ्लावर। बहुत खूबसूरत। इसका मतलब किसी को भी खूबसूरत फूल, किसी को भी खूबसूरत कहने के पहले वर्ड्सवर्थ ने अच्छे से जांचा परखा कि क्या ये ईश्वर अथवा प्रकृति के द्वारा दिए गए सभी दुख दर्द या परेशानियों को झेल सकती है। अगर हां तो इसे हम खूबसूरत फूल कहेंगे। कभी आप लोगों ने यह सोचा कि जो लूसी थी वो 3 साल तक ही जीवित क्यों रही? 4 साल भी रह सकती थी, 5 भी रह सकती थी, 50 भी रह सकती थी, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने एक ऐसे लड़की की कल्पना की जो 3 साल तक ही जीवित रही। क्यों? क्योंकि 3 साल तक वो सी वो जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ नेचर।
वो नेचर का उत्पाद थी, नेचर ने उसे पाला पोसा था, लेकिन जैसे ही वो बड़ी होने लगी वो इस दुनिया के प्रभाव में आने लगी और नेचर का प्रभाव उसके प्रभाव से कम होने लगा, दुनिया का प्रभाव ज्यादा दिखने लगा। अब नाउ शी वॉज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, बट शी was going to be the product of this world, and the world you know is full of artificiality. आप सभी जानते हैं कि दुनिया में दिखावा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कोई भी जेन्युइन लाइफ नहीं जीना चाहता है, हर व्यक्ति केवल दिखावे में जीना चाहता है। कैसे लोग जाने कि मैं ये हूं, कैसे लोग जाने कि मैं वो हूं, कैसे लोग जाने कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, कैसे लोग जाने कि मैं असामान्य व्यक्ति हूं। कहीं ना कहीं हमने दुनिया के प्रभाव में आकर अपने जेन्युइन नेचर या एज वी वर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर त्याग दिया है। हम असली रहे ही नहीं, हम नकली हो गए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वास्तव में केवल एक्सप्लोर करना चाहते थे, और एक्सप्लोरेशन किसी भी कॉन्सेप्ट की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। दिस इज द बिगेस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ एनीथिंग। तो एक्सप्लोरेशन आपको वर्ड्सवर्थ की हर पोइट्री में देखने को मिलेगा। जांचेंगे, परखेंगे, लॉजिक देंगे अपने कि कैसे हमने इसको माना है, कैसे हमने इसको त्यागा है। नेक्स्ट वन इज चाइल्डहुड, बचपन। फॉर वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड इज द प्राइम पीरियड ऑफ वंस लाइफ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पल आते हैं उनमें से एक बचपन है, बल्कि कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पल जो होता है वो बचपन का पीरियड होता है। आप लोगों में से कौन नहीं चाहता है कि हम बचपन में वापस चले जाएं? जब हम छोटे थे तो चाहते थे कि बड़े हो जाएं। जब आप पढ़ते रहे होंगे, 5th स्टैंडर्ड में रहे होंगे, तो लगता होगा काश 6th में चले जाते तो स्कूल बदल जाता, सीनियर हो जाते। 6th में गए तो मन होता होगा 7th में चले जाते तो और सीनियर हो जाते। फिर एक दिन ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, बचपन चला गया। तब सोचना शुरू किए कि काश बचपन फिर से वापस आ जाता। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड वॉज एन इनोसेंट पीरियड, और यू कैन कॉल इट द पीरियड ऑफ इनोसेंस। भोले भालेपन का एक समय था। मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं था, प्रेस्टीज अथवा क्रेडिट की कोई बात नहीं थी। वी वर एक्सट्रीमली लिबरेटेड एंड फ्री। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। नाउ वी आर एवरीवेयर इन चेन्स। हम हर जगह अब चेन्स में बंधे हुए हैं, परिस्थितियों के गुलाम हो गए हैं। फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ the period of childhood was a bliss. Childhood was just the matter of divinity. Childhood was not a common period. As he himself says that child is father of man. Why he says that child is the father of man? Only because you can see that in his poem Immortality Ode that I discussed earlier. In Immortality Ode, William Wordsworth calls a child the best prophet. Why he called the best prophet? Because he could prophesize the things that even a saint, the great divine figure, cannot prophesize.
दिस इज द मैटर। आने वाले जीवन काल में क्या होने वाला है, ये एक बच्चा बहुत आसानी से भांप जाता है, बहुत आसानी से भांप जाता है। कैसे भांपता है वो? कैसे भांपता है वो? वो भांपता ऐसे, जैसे आपने किसी बच्चे को देखा होगा, वो कभी लाठी लेके चलता है, आपने देखा होगा कि वो कभी घरौंदे बनाने लगता है। कैसे बनाता है घरौंदे? क्योंकि उसे पता है कि आने वाले जीवन काल में वही करना है उसे। वो गुड्डी गुड्डे का खेल खेलता है, शादियां करता है, फिर बिखेर देता है। वो जानता है कि आने वाले जीवन काल में यही है, पहले मैं घर बनाऊंगा, फिर मेरी शादी होगी, फिर एक दिन आएगा बूढ़ा हो जाऊंगा, लाठी पर चलूंगा, और एक दिन ये खेल समाप्त हो जाएगा। So this is the best philosophy or the final philosophy of life. And that very child can be called the best philosopher and the prophet, because he philosophizes the life and he prophesizes each and everything. So William Wordsworth's concepts, William Wordsworth के जो concepts हैं, और बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, सामान्य कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही असामान्य कॉन्सेप्ट है। सो इफ यू गो थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, immediately you must guess that the poet is William Wordsworth. So as a poet, William Wordsworth was not a common poet. He was a philosopher sometimes, but poet for all time. So, आज मैं यहाँ अपने आप को विराम देता हूँ। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का जीवन परिचय शुरू से लेके अंत तक हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्ड्सवर्थ के इंडिविजुअल राइटिंग्स पर जाएंगे। तो आज मैं अपने आप को समाप्त करता हूं, अपने आप को विराम देता हूं। आज की क्लास में बस इतना। इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू।